Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the best way to mail a professor for exploring the opportunities in their research groups, like for MS, PhD, direct PhD, these kind of opportunities in India and abroad. Friends, try to understand one thing: PhD and MS, if you want to get fully funded scholarships in these courses in India or abroad, you need to get in touch with the professor, respective professor with whom you want to work. बिकॉज अगर आप अप्लाई भी करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एप्लीकेशन आपका प्रोफेसर के पास जाता है एंड प्रोफेसर विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर बैकग्राउंड वेदर ही वांट्स टू टेक यू एज रिसर्च स्कॉलर, MS, PhD स्कॉलर और नॉट. स्पेशली फॉर डायरेक्ट PhD आफ्टर अंडर ग्रेड, लाइक बीटेक के बाद से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रोफेसर की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडियन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट PhD अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं है. अगर आप इंडिया में 150 टॉप NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूट से हो, IITs, ट्रिपल IITs, IICRs, NITs एंड सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स, गुड इंस्टीट्यूट्स, और आपका CGPA अच्छा है, 8+ अच्छा है, और रिसर्च आपने प्रोजेक्ट अच्छा किया है, इंटर्नशिप्स की हैं, तो आपको पैसे खर्चने नहीं होते हैं. डोंट बर्न मनी, अर्न मनी in foreign universities and go for direct PhD. And otherwise also in MS you can get as good scholarship as in PhD. US वगैरह के अंदर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर आप अगर MS भी करते हैं तो आपको इतना ही स्कॉलरशिप मिल जाता है जितना PhD में मिलता है, समवेयर अराउंड $2,500 इफ द प्रोफेसर वांट्स टू गिव यू दैट. और वो तभी होगा अगर आप प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट में आएंगे. सो रफली इफ यू आर प्लानिंग टू pursue really good opportunity for you, MS in India, PhD in India or MS PhD abroad, please start mailing professor. Now having said that, when you mail a professor it should not be cold mailing. अगर आप देखोगे इंटरनेट के ऊपर आपको एक टर्म मिलेगी जिसको बोलते हैं कोल्ड मेलिंग. कोल्ड मेलिंग होता है arbitrarily start mailing to many people and some response you will get it. आपने बहुत से लोगों को मेल किया और आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल गया. जैसे सपोज आपने 100 लोगों को मेल किया और उसमें से 5 लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया, दैट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कोल्ड रिस्पॉन्स. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोल्ड रिस्पॉन्स? कोल्ड मेलिंग विल गिव यू कोल्ड रिस्पॉन्स, बट वार्म मेलिंग विल गिव यू वार्म रिस्पॉन्स. नाउ हाउ डू आई define the warm mailing? And let me tell you friends, warm mailing is the modus operandi by Europedia, and Europedia only has devised this term. ये यूरोपीडिया का क्रिएटेड टर्म है वार्म मेलिंग. नॉट ओनली वी क्रिएटेड अ टर्म, वी सेट अप द एंटायर मेथोडोलॉजी हाउ टू मेक एनी मेल वार्म मेल. और यही मेल जो आप ड्रॉप करते हो वार्म मेल, ये बाद में आपका SOP या कवर लेटर बन जाता है. और ये SOP और कवर लेटर आप ग्रेजुएट स्कूल में जब एप्लीकेशन डालते हो, देन यू send that SOP there, and the warm mail you send to the professor, and when your application goes to the professor through graduate school, professor recognize that application which you have, the mail which you have sent to him, he will appreciate, he will see that through this particular document, and the professor will reply you back. So the mail has to be warm mail. Now how do I define the warm mail? So typically a warm mail should carry couple of things. A warm mail should carry couple of things. What those couple of things should be? The research interest you have should be very clearly defined. But only interest से काम नहीं चलेगा. Only interest will not help. That interest should be supported by your interest background. And when I am saying background, student think it as a research paper. Research background does not mean research paper. Research paper है very good. If it is not there, you must have done रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको आप बीटेक प्रोजेक्ट बोलते हैं या एमटेक प्रोजेक्ट बोलते हैं. आपने प्रोजेक्ट किया होगा, आपने इंटर्नशिप किया होगा. तो वट एवर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप यू हैव डन, if it is in the direction of your interest, that becomes your research background. And your research interest in which you want to do MS or PhD, your research background which you have done in your BTech project or internship and which matches with the interest should be strongly matching with the research work of the professor. अब प्रोफेसर का कोई रिसर्च वर्क होगा, वो उस यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च काम कर रहे होंगे, तो प्रोफेसर का रिसर्च वर्क, आपका रिसर्च बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट शुड मैच. इसको मैच करती हुई जो आप मेल डालते हो एक पेज की, दैट इज कॉल्ड वार्म मेल. एंड इन दैट मेल प्रोफेसर वुड लाइक टू सी हिमसेल्फ देयर. ही वांट टू सी वेदर दिस स्टूडेंट नोज माय वर्क, whether this student has a background in this work,
what he wants to do and how he can be helpful if he joins me in my research group. That is called warm mail. आप ऐसी वार्म मेल डालोगे फ्रेंड्स तो आपको वार्म रिस्पॉन्स भी आता है। 100 डालोगे तो मे बी 2 4 5 आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, बाकी नेगेटिव आए, जो भी होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स को हम वार्म रिस्पॉन्स बोलते हैं। डोंट डू कोल्ड मेलिंग, डू वार्म मेलिंग। नाउ लेट मी शेयर विद यू वन ऑफ सच वार्म मेल ऑफ अ स्टूडेंट। नेम्स एंड एवरीथिंग इज चेंज्ड हियर, बट दिस स्टूडेंट हैज गॉट कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज दिस फॉल, जो यूएस में उसने अप्लाई किया था डायरेक्ट पीएचडी के लिए। I put my name. I'm an international student and I'm currently in final year of my this thing that we have seen, those things we have written, and then you will show your interest in which domain you want to do. You want to show your keen interest to pursue direct PhD in the additive manufacturing. So then you will write, okay, I know your work, you are doing work in this, so professor's research work. You are aware about professor's research work. This is the research work of professor. जो काम प्रोफेसर जिस फील्ड में कर रहा है, रिसर्च वर्क। आपने ऑलरेडी बोल दिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, और फिर आपने बोला लेजर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर रहे हो। मैंने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा है, आपके इस रिसर्च पेपर को देख के मेरे को इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में मैंने ये काम प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने कुछ ऐसे काम अपने किए हैं, मैंने इस फील्ड में काम किया है, और अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पास आने की, और मैंने प्रोफेसर ने मेरे रिकमेंड किया है आपका काम, और मैंने AIML वगैरह से रिलेट किया है इसको, और मेरे को अगर आपके पास काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आई विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। दिस इज व्हाट यू हैव रिटन। दिस इज कॉल्ड अ वार्म मेल ऑफ 1 पेज। व्हाट यू हैव डन सो फार इन द फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं। आप अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस प्रोफेसर का काम करने की, तो आप क्या करना चाहोगे, आप इस प्रोफेसर के रिसर्च वर्क के बारे में क्या जानते हो, ये एक पेज आपको बनाना होता है फ्रेंड्स। और योर PDA के मेंटर आपको गाइड करते हैं। ये चीज़ आपको इंडिया में भी MS में एडमिशन दिलवाएगी, और अब्रॉड में भी आपको फुली फंडेड प्रोग्राम्स दिलवाएगी। सो डू वार्म मेलिंग एवरी डे, 1 वार्म मेलिंग, एंड बिलीव मी, यू गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑन योर टेबल। थैंक यू।